यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। তৈলজাতীয় শস্যই সৰিয়হ, তিল, তিচি, গুজি তিল, সূৰুযমুখী ফুল, বাদাম আদিৰ খেতি সামৰি লয়। এইসমূহ খেতিৰ ভিতৰত অসমত ৰবি শস্যৰ বতৰত কৰা সৰিয়হ খেতিয়ে হ'ল 90%, য'ৰ পৰা ৰাজ্যখনত 1.83 লাখ মেট্ৰিক টন খোৱা তেল উৎপাদন হয়। আমাৰ ৰাজ্যখন খোৱা তেল উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও বহু পিছপৰা যদিও সঠিক পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তে খোৱা তেলৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা দেখা যায়। বছৰি আমাৰ ৰাজ্যখনত 2.85 লাখ হেক্টৰ মাটিকালি সামৰি সৰিয়হ খেতি কৰা হয় যদিও এই খেতি কৰা মাটিত পৰিমাণ অনায়াসে দুগুণলৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি। ইফালে ৰবি শস্য বতৰত এই প্ৰধান শস্যবিধৰ গড় উৎপাদন ৰাষ্ট্ৰীয় গড় উৎপাদনৰ তুলনাত আধা হোৱা হেতুকে হেক্টৰে প্ৰতি গড় উৎপাদন বৃদ্ধিৰ যথেষ্ট থল দেখা যায়। অসমত সৰিয়হৰ ৰাজ্যিক গড় উৎপাদন হেক্টৰে প্ৰতি মাথোন 660 কেজি হোৱাৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰীয় গড় উৎপাদন 1511 কিলোগ্ৰাম। ৰাজ্যখনৰ মাটি, পানী, জলবায়ু যিহেতু সৰিয়হ খেতিৰ বাবে অতি অনুকূল, উন্নত কৃষি প্ৰযুক্তিৰ সমাহাৰত সৰিয়হৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰাটো তেনেই সম্ভৱ। অসমৰ নদী কাষৰীয়া বিস্তৃত কৃষিভূমি আৰু আগতীয়াকৈ শালি ধান চপোৱা অঞ্চলসমূহত অনায়াসে সৰিয়হৰ খেতি কৰিব পাৰি। এইবিধ শস্যৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে অত্যাধুনিক কৃষি প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োজন নাই যদিও সময়মতে বীজ সিঁচা, উন্নত মানৰ বীজ ব্যৱহাৰ, সুষম সাৰৰ ব্যৱহাৰ, শস্য সুৰক্ষা ব্যৱস্থাপনা আদিবোৰ সহজ ব্যৱস্থাৰে এইবিধ শস্যৰ গড় উৎপাদন ৰাষ্ট্ৰীয় গড় উৎপাদনৰ সমানলৈ নিয়াটো তেনেই সম্ভৱ। অসমত লখিমপুৰ, কোকৰাঝাৰ, শোণিতপুৰ, দৰং, ধেমাজি, বৰপেটা, নগাঁও, কাৰ্বি আংলং আৰু যোৰহাট জিলাত ব্যাপকভাৱে সৰিয়হ খেতি কৰা হয়। এইসমূহ জিলাৰ উপৰিও ৰাজ্যখনত প্ৰতিখন জিলাতে গুণগত মানৰ উন্নত জাতৰ বীজ ব্যৱহাৰ, সুষম সাৰত সাৰ প্ৰয়োগ, শস্য সুৰক্ষা ব্যৱস্থাপনা, জলসিঞ্চন, সময়মতে বীজ সিঁচা আদিবোৰ ব্যৱস্থাৰে এইবিধ তৈলজাতীয় শস্যৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰাটো সম্ভৱ। সৰিয়হ খেতিক সাধাৰণতে তৰিয়া আৰু মাষ্টাৰ্ড এই দুটা প্ৰধান ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। আমাৰ ৰাজ্যত কৰা সৰিয়হৰ 90%ই তৰিয়া জাতৰ। ইহঁত চাপৰ জাতৰ আৰু কম দিনীয়া, যাৰ উৎপাদন ক্ষমতাও তুলনামূলকভাৱে কম। M27, TS36, TS38, TS46, RH406 আদিবোৰ হৈছে তৰিয়া জাতৰ জনপ্ৰিয় জাত। এনেবোৰ জাতৰ খেতি বীজ সিঁচাৰ 3 মাহৰ ভিতৰত চপাব পাৰি। DRMR 150, 35, NRCHB 101, PM28 আদিবোৰ হ'ল মাষ্টাৰ্ডৰ জাত। অসমত সৰিয়হ খেতিৰ সম্ভাৱনা আৰু উৎপাদন বৃদ্ধিৰ উপায় সম্পৰ্কে জানিবলৈ বিচাৰি সোধাত DRMR অৰ্থাৎ ডিৰেক্টৰেট অৱ ৰেপচিড এণ্ড মাষ্টাৰ্ড ৰিচাৰ্চৰ ডক্টৰ বিপিন কুमार শৰ্মাই এনেদৰে কয়। हमारे असम में जैसे मैं देखता आ रहा हूँ पिछले कुछ सालों से ये लोकल तोरैया ग्रो किया जाता है। यहाँ पर हमारे किसान भाई लोकल तोरैया जो इजीली अवेलेबल होता है सीड, उसे ग्रो करते हैं और उसका प्रोडक्शन जैसे कि मैंने बताया हमारे असम का प्रोडक्शन 6.5 कुंटल पर हेक्टेयर है। जो फार्मर अच्छे से कर पाते हैं वो इतना एवरेज प्रोडक्शन ले पाते हैं और ये 4-5 के अराउंड भी
एवरेज प्रोडक्शन जाता है। ये किस वजह से है? हमारी वैरायटी। उसके बाद जो एग्नोमिकल प्रैक्टिसेस रहती हैं हमारे किसान भाई, वो अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते, उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी जो भूमि है, किसान भाइयों का जो खेत है, उसका पोटेंशियल हम प्रॉपर ले नहीं पाते। वैरायटी अपने आप में इतनी इम्पोर्टेंस रखता है कि उसकी अगर हम सही चूज़ कर लें, अगर वैरायटी का सिलेक्शन हमारा अच्छा है, सही है, तो 40% तक वैरायटी का रोल होता है जो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ करे। तो TS38 हम लोग यहाँ पर किसान भाइयों को प्रोवाइड करा रहे हैं, और देखने में आ रहा है कि TS38 काफ़ी सक्सेसफुल वैरायटी रही है हमारे किसान भाइयों के बीच में, और काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। लास्ट ईयर से हमने ये चीज़ शुरू की थी, इस बार देखने को मिल रहा है कि हमारे किसान भाइयों ने 2 बीघा जो डेमोस्ट्रेशन था उसका सीड यूज़ करके मल्टीपल एरिया में उन्होंने वो ग्रो किया है। जो लोकल तोरैया की बात कर रहे थे, ये इम्प्रूव तोरैया है TS38। ओके, ये होगी रेप सीड। और दूसरी होती है मस्टर्ड। मस्टर्ड की हम 3 वैरायटी यहाँ पर अपने किसान भाइयों को दे रहे हैं। हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं। फर्स्ट NRC HP 101, सेकेंड DRMR 150-35 एंड थर्ड PM 28। ये कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो हमारे किसान भाइयों का ना सिर्फ प्रोडक्शन डबल करेंगी, जो यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा उनका प्रोडक्शन ले सकेंगे हमारे किसान भाई। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो वैरायटी है, हाई यील्डिंग वैरायटीज़, इनका पोटेंशियल 18 कुंटल 20 कुंटल पर हेक्टेयर तक है। और अगर ऑयल कंटेंट की बात करें, इनके ऑयल कंटेंट भी काफ़ी अच्छी मात्रा में हम ऑयल परसेंटेज ले पाते हैं। 38 to 43% इनमें ऑयल कंटेंट अवेलेबल है। तो ये चीज़, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का इंटरवेंशन अगर हम कर पाते हैं तो हमारे किसान भाई उस ऑब्जेक्टिव को पा सकेंगे जिसके लिए हमारे राज्य सरकार, हमारे भारत सरकार और उन सब के इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के कृषि डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ वैराइटल इंट्रोडक्शन से हमारा 40% तक प्रोडक्शन बढ़ सकता है। নদী কাষৰীয়া বালিচহীয়া পলসুৱা মাটি সৰিয়হ খেতিৰ বাবে অতি উত্তম। অতি কমেও 4 পৰা 5 হাল বাই ভালদৰে মাটি প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰিলে সৰিয়হৰ উৎপাদন বৃদ্ধি পোৱাই নহয়, পোক পৰুৱা, বেমাৰ আজাৰ তথা অপতৃণ নিয়ন্ত্ৰণতো সহায়ক হয়। শালি ধান চপোৱাৰ পিছত নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত সৰিয়হ খেতি কৰাটো তেনেই সম্ভৱ। সৰিয়হ সিঁচাৰ সময় যিমানেই দেৰি হ'ব, সিমানে পোক পৰুৱাৰ আক্ৰমণো বৃদ্ধি পাব। সাধাৰণতে সৰিয়হৰ বীজ পোনপটীয়াভাৱে পথাৰত সিঁচি দিয়া হয় যদিও শাৰী পদ্ধতিত সিঁচিব পাৰিলে বীজৰ পৰিমাণো কম লাগে আৰু গছৰ সংখ্যা সঠিক থকা বাবে সৰিয়হৰ উৎপাদনো বৃদ্ধি পায়। সৰিয়হ খেতিডৰাৰ পৰা আশানুৰূপ উৎপাদন পাবলৈ সুষম সাৰত ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰাটো বাঞ্ছনীয়। পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পচন সাৰৰ সৈতে বিঘাই প্ৰতি 12 কিলোগ্ৰাম ইউৰিয়া, 30 কিলোগ্ৰাম একক ছুপাৰ ফছফেট আৰু 3 কিলোগ্ৰাম মিউৰেট অফ পটাছ সাৰৰ উপৰিও 1 কিলোগ্ৰাম শুৱগা প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। সময়মতে আৰু আগতীয়াকৈ কৰা খেতিডৰা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পোক পৰুৱা, বেমাৰ আজাৰৰ পৰা মুক্ত ৰাখিব পাৰি। শস্যডৰাৰ স্বাস্থ্য যিমানে ভাল হ'ব, পোক পৰুৱা, বেমাৰ আজাৰৰ আক্ৰমণো সিমানে কম হ'ব। উন্নত মানৰ বীজৰ ব্যৱহাৰ, সুষম সাৰত সাৰ প্ৰয়োগ, সৰিয়হ ফুলাৰ ঠিক আগে আগে অন্তত এবাৰ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিলে খেতিডৰাৰ পৰা ভাল উৎপাদন আশা কৰিব পাৰি। নুমলীয়াকৈ কৰা সৰিয়হ খেতিডৰা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পোক পৰুৱাৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। মোৱা পোক নতুবা মাষ্টাৰ্ড এফিড হ'ল সৰিয়হৰ প্ৰধান সমস্যা। শ্ব' ফ্লাই আৰু বিহাৰ হেয়াৰী কেটাৰপিলাৰ হৈছে সৰিয়হৰ আন কিছু প্ৰধান সমস্যা। অল্টাৰনেৰিয়া ব্লাইট, হোৱাইট ৰাষ্ট, ডাউনি মিলডিউ, পাউডাৰী মিলডিউ আদি হৈছে সৰিয়হৰ প্ৰধান বেমাৰ। পোক পৰুৱা, বেমাৰ আজাৰৰ আক্ৰমণ দেখাৰ লগে লগে প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা হাতত ল'ব লাগে। পৰাপক্ষত সুসংহত শস্য সুৰক্ষা ব্যৱস্থাপনাৰ জৰিয়তে এনেবোৰ সমস্যা সমাধানৰ চেষ্টা কৰিব লাগে।
সৰিয়হ খেতিডৰাৰ পৰা আশানুৰূপ উৎপাদন পাবলৈ কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা আৱশ্যক এই সম্পৰ্কে ডক্টৰ বিপিন কুমাৰ শৰ্মাই এনেদৰে কয়। ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फील्ड प्रिपरेशन। किस तरह से फील्ड प्रिपरेशन होनी चाहिए, उसमें हमारे किसान भाई जो मैंने देखा है यहाँ पर टिल्थ, जो हमारी माटी का टिल्थ है वो मेंटेन नहीं करते। फाइन टिल्थ होना चाहिए, उसके लिए 4 से 5 बार कल्टीवेटर और रोटावेटर का यूज़ करना चाहिए, फिर ज़मीन में पाटा लगा के उसे समतल बना देना चाहिए। ये तो हमारा हो गया भूमि तैयार। उसके बाद आता है हमारा फर्टिलाइज़र, बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र। हमारे किसान भाई बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उन्हें या तो किसान भाई फर्टिलाइज़र डालेंगे नहीं, थोड़ा बहुत डाल देंगे, या फिर अगर डालेंगे तो वो उनका ध्यान रहता है कि जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र वो खेत में डाल पाएँ उतना डालते हैं, जिससे वो फर्टिलाइज़र टॉक्सिसिटी अपने प्लांट्स में देखने को मिलती है। तो जो बैलेंस फर्टिलाइज़र की डोज है, यूरिया 16 kg पर बीघा, एसएसपी जिसमें सल्फर होता है, इसमें डीएपी नहीं लगाना है, हमें डीएपी की जगह एसएसपी लगाना है जो 32 kg पर बीघा। उसके बाद आता है एमओपी, एमओपी हमारा 9 kg पर बीघा। और चौथा मैं बता रहा हूँ बोरेक्स, बोरेक्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे मस्टर्ड कल्टीवेशन के लिए। उसके लिए 1 बीघा में 1.25 kg की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम अपने डेमोस्ट्रेशन में अपने किसान भाइयों को सीड के साथ साथ बैलेंस फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। हम समय समय पे उन्हें बता रहे हैं कि ये बैलेंस फर्टिलाइज़र आप लगाएं, इससे कम लगाएंगे तो भी हानि होगी, इससे ज़्यादा लगाएंगे तो भी हानि होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये कोशिश हमारे किसान भाइयों को समझ आए। अब मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूँ, जो जैसा कि मैंने बताया टाइमली सोइंग, समय से बुवाई। समय से बुवाई इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारा प्रोडक्शन लेना। अच्छा प्रोडक्शन हमारा तभी आ पाएगा जब हम समय से बुवाई कर पाएंगे। जो टाइम ड्यूरेशन हम सजेस्ट करते हैं अपने किसान भाइयों को, वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में हमारे किसान भाई अगर इसकी सोइंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो पा रहा है तो लेट सोइंग 25 नवंबर तक भी कर सकें तो उनका प्रोडक्शन उम्मीद करता हूँ कि अच्छा होगा। इससे सिर्फ प्रोडक्शन ही अच्छा नहीं होता, इससे दूसरे और भी फैक्टर्स हैं जिससे हमारी फसल को लाभ होता है, जैसा कि हमारे इंसेक्ट्स, एक ड्यूरिंग क्रॉप स्टेजेस हमारे इंसेक्ट्स आते हैं, जैसे कि एफिड है, सॉफ्लाई है। ये इंसेक्ट्स अपनी क्रॉप स्टेज अगर उन्हें सुटेबल लगती है तो उस वक्त वो आ जाते हैं। अगर लेट सोइंग हम करेंगे तो एफिड आ जाएगा, अगर हम टाइमली सोइंग करेंगे तो एफिड नहीं आएगा, हमारी क्रॉप एस्केप हो जाएगी। इसी तरह से सॉफ्लाई है, सॉफ्लाई हमारा दिसंबर में आता है जर्मिनेशन स्टेज पे। अगर हमारा जर्मिनेशन स्टेज पूरा हो जाए नवंबर में सोइंग करने से तो सॉफ्लाई से हम एस्केप कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे टाइमली सोइंग को सपोर्ट करती हैं। अब चौथी चीज़ पे मैं आ जाता हूँ। अब हमारी सोइंग हो गई, अब इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली तो किसान भाई सोइंग कैसे करें, 2 तरह से सोइंग कर सकते हैं। हमारे किसान भाइयों का यहाँ पर तरीका है ब्रॉडकास्टिंग, छिड़काव विधि से। छिड़काव विधि भी ठीक है, लेकिन अगर वो लाइन सोइंग करना चाहते हैं तो उससे उन्हें 2 फायदे होंगे। एक तो फसल में जो खरपतवार, इंग्लिश में वीड बोलते हैं, उन्हें आसानी से निकाल पाएंगे। दूसरा, जो हमारा जर्मिनेशन परसेंटेज है वो इक्विवेलेंट रहेगा। इक्विवेलेंट से मतलब है कि हमारे 1 बीघा में पर्टिकुलर पॉपुलेशन होनी चाहिए। अगर वो पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो हमारे एक सिंगल प्लांट की ग्रोथ दब जाती है। अगर वो पॉपुलेशन कम हो जाती है तो हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो इसके लिए लाइन सोइंग पे अगर हमारे किसान भाई जाएं तो उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन हमारी छिड़काव विधि से किए हुए तरीके से ज़्यादा आएगा। সৰিয়হৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে মৌ পালন এক উত্তম উপায়। মৌ পালনৰ জৰিয়তে মৌজোল আহৰণেই নহয়, মৌমাখিৰ দ্বাৰা পৰাগ সংযোগৰ জৰিয়তে শস্যৰ উৎপাদনো বৃদ্ধি কৰাটো সম্ভৱ। সৰিয়হ খেতিৰ দ্বাৰা যেতিয়াই ৭৫% সোণালী হালধীয়া বৰণ ধাৰণ কৰিব, তেতিয়াই ইহঁত পুৰঠ হোৱা বুলি ধৰিব পাৰি আৰু চপাবৰ উপযোগী হয়। কাঁচিৰে কাটি সৰিয়হ চপোৱা হয় যদিও চাপৰ জাতৰ সৰিয়হ চপাবৰ বাবে হাতেৰে উভালিব পাৰি। বিস্তৃতভাৱে কৰা সৰিয়হ খেতি চপাবলৈ অৱশ্যে অত্যাধুনিক যন্ত্ৰপাতিৰ সহায় লোৱা আৱশ্যক। চপোৱাৰ পিছত মৰণা মাৰি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰ'দত শুকুৱাই দীৰ্ঘ দিনৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি।
সৰিয়হৰ মূল্য সংযোজন আৰু সংসাধন তথা অন্যান্য কিছু দিশ সম্পৰ্কে ডক্টৰ বিপিন কুমাৰ শৰ্মাই এনেদৰে কয়। जैसे हमारी मस्टर्ड मैच्योर हो गई, अब हमें हार्वेस्ट करनी है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हार्वेस्ट कब करनी है। जब इस पे पॉट बनाएं और पॉट गोल्डन कलर के हो जाएं, ग्रीनिश गोल्डन, तब इसे ये हम हार्वेस्ट कर लेनी चाहिए। अदरवाइज़ हमारे किसान क्या करते हैं, पूरी तरह से ड्राई हो जाती है, हार्वेस्ट करते हैं तो हमारे पॉट ज़मीन में बिखरने लगते हैं, दाने बिखरने लगते हैं, तो उससे हमारे प्रोडक्शन को हानि होती है। हमने हार्वेस्ट कर लिया टाइमली, 75% मैच्योरिटी पे हार्वेस्ट कर लिया हमने, और एक हफ्ते हम सन ड्राई के लिए खेत में छोड़ देते हैं। खेत में या फिर अपने घर में आप सन ड्राई कर सकते हैं। उसके बाद 12% मॉइस्चर उसमें रहे तो हम अपना ग्रेन्स निकाल सकते हैं। अब आपने बात की प्रोसेसिंग की, तो हम अपने किसान भाइयों को इस सीज़न में मिनी एक्सपेलर प्रोवाइड करवा रहे हैं। मिनी एक्सपेलर से हमारे किसान भाई जाकर अपनी सरसों को वहाँ से तेल निकाल सकते हैं और सीधे सीधे उसका घर में यूज़ करना चाहें घर में यूज़ कीजिए, अगर डायरेक्टली सेल करना चाहें सेल कीजिए। इसमें मैं आपको एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ। हमारा देश इतना अरब से ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे कंट्री की, और अभी तक आज़ादी के इतने साल बीत गए, हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं ऑयल सीड प्रोडक्शन में। 60% ऑयल हम बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट आया है, भारत सरकार ने ये प्रोजेक्ट ये सोच के इम्प्लीमेंट किया है कि हम क्यों ना खुद से सेल्फ सफिशिएंट हों, हम क्यों अपनी फॉरेन एक्सचेंज क्यों बढ़ाएं। उसके लिए हमारे राज्य सरकार ने, असम राज्य सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल के ये प्रोजेक्ट लिया। हमारी माटी में पोटेंशियल है, अगर हम ये प्रोडक्शन बढ़ा पाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डबल से भी ज़्यादा गैप है, ये प्रोडक्शन बढ़ पाता है तो हम ना सिर्फ असम को, बाहर के और राज्य को भी तेल दे पाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, पिछले साल मैं देख रहा था हमारे भारत सरकार ने एक फ़ैसला लिया है। उस फैसले में जो हम 1 लीटर का मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं उसमें 70 to 80% एडिबल ऑयल, परमिशेबल एडिबल ऑयल यूज़ होता था। तो हमारे FSSAI बोर्ड ने फैसला लिया है कि 90% तक मस्टर्ड ऑयल ही होगा, 10% आप एडिबल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में इसका प्राइस डबल के करीब पहुंच गया है। हम जो 150 लिया करते थे मस्टर्ड का 1 लीटर तेल, आज 225-230 लेना पड़ रहा है हमें। तो क्यों ना हम इस मस्टर्ड को खुद ही उगाएं और खुद ही इसका तेल यूज़ करें और सेल करें, तो हमें कितना फ़ायदा होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो प्राइस सिर्फ इस वजह से नहीं बढ़ा कि हमारा प्रोडक्शन कम था, ये इस वजह से बढ़ा कि आने वाले टाइम में लॉन्ग लास्टिंग हमें मस्टर्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा, बट प्राइस भी साथ साथ बढ़ता रहेगा। इससे किसान भाई अपनी आमदनी दोगुनी कर सकते हैं। हमारा प्रोजेक्ट ही यही है। जो ICAR DRMR का जो प्रोजेक्ट है, एग्यूमेंटेशन ऑफ रेपसीड मस्टर्ड प्रोडक्शन ऑफ असम फार्मर्स फॉर देयर सस्टेनेबल लाइवलीहुड, ये चीज़ करके हमारे किसान भाई ना सिर्फ सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, इवन अपना जो आमदनी है उसे दोगुनी कर सकते हैं। भारत सरकारों प्रतिটো प्रयास কৃষকৰ প্ৰগতিত দি আছে এটা নতুন বিশ্বাস। দেশৰ কৃষকসকলৰ প্ৰতি সমৰ্পিত ভাৰত চৰকাৰে বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ কৃষি অঞ্চলৰ বিকাশৰ বাবে নতুন প্ৰগতিশীল পদক্ষেপ লৈছে, যাৰ দ্বাৰা কৃষকসকলে দ্ৰুত গতিত উন্নতি কৰি আছে। কৃষি অঞ্চলৰ বিকাশৰ গতি অব্যাহত ৰাখি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰত চৰকাৰে এক দূৰদৰ্শী নিৰ্ণয় লৈ দেশত ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য তেল মিছন অইল পামৰ আৰম্ভণি কৰিছে, যাৰ দ্বাৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহ আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ কৃষকসকলৰ বিশেষ লাভ হ'ব। পুঁজিৰ বিনিয়োগত বৃদ্ধি পাব, খোৱা তেলৰ আমদানিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাটো কম হ'ব আৰু ৰোজগাৰৰ সুবিধা সৃষ্টি হ'ব। খোৱা তেলত আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ বাবে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য তেল মিছন অইল পামৰ সংকল্প লোৱা হৈছে। নৰ্থ ইষ্ট আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ এনেকুৱা অঞ্চল য'ত সহজে পামৰ খেতি কৰিব পৰা যায়, পাম অইলৰ উৎপাদন হ'ব পাৰে।
এই মিছনৰ অধীনত অইল পামৰ অঞ্চল আৰু উৎপাদন বঢ়োৱাত জোৰ দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে 11,000 কোটি টকাৰো অধিক সাহায্য ৰাখি নিৰ্ধাৰিত কৰিছে। মিছনৰ অধীনত চৰকাৰে অইল পামৰ খেতিৰ বাবে ৰোপণ আদিৰ সহায়ত বৃদ্ধি ঘটাই পূৰ্বতে পাবলগীয়া প্ৰতি হেক্টৰত 12,000 টকাৰ পৰা বঢ়াই প্ৰতি হেক্টৰত 29,000 টকা কৰি দিছে। পুলি ৰোপণ সামগ্ৰীৰ অভাৱ দূৰ কৰাৰ বাবে বীজৰ উৎপাদন কৰাৰ বাবে বাগিচাকো সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব, যাৰ অধীনত প্ৰতি হেক্টৰ ক্ষেত্ৰফলৰ অইল পামৰ উদ্যানৰ বাবে 1 কোটি আৰু নাৰ্চাৰী বিকাশৰ বাবে 50 লাখ টকাৰ ব্যৱস্থা আছে। 30 বছৰীয়া পুৰণা বাগিচাৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰতি পুলিত 250 টকাৰ এককালীন অনুদান দিয়া হ'ব। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু আন্দামানৰ বিশেষ সাহায্যৰ অধীনত তাৰ অঞ্চলৰ গাঁথনি, জলবায়ু আৰু অন্য পৰিস্থিতি অনুসৰি বিভিন্ন দিশত যেনে হাফ মুন টেৰেছত প্ৰতি হেক্টৰত 4,000 টকা, জেওৰা, বায়'ফেন্সিং তথা লেণ্ড ক্লিয়াৰেন্সৰ বাবে প্ৰতি হেক্টৰত 7,000 টকা আৰু একত্ৰিত খেতিৰ বাবে প্ৰতি হেক্টৰত 10,000 টকাৰ ব্যৱস্থা আছে। প্ৰাৰম্ভিক 4 বছৰৰ সময়ত ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু অন্তৰ ফচলৰ বাবে প্ৰতি হেক্টৰত 50,000 টকাৰ ব্যৱস্থা আছে। কৃষকৰ বাবে ৰোজগাৰৰ সুবিধা সৃষ্টি কৰা আৰু উদ্যোগসমূহক উদগনি জনোৱাৰ বাবে 5 মেট্ৰিক টন প্ৰতি ঘণ্টা ক্ষমতাযুক্ত নতুন পাম অইল মিছনৰ প্ৰতি গোটৰ বাবে 5 কোটি টকালৈকে অনুদানৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু ক্ষমতাত বৃদ্ধি পালে অতিৰিক্ত ধনৰাশিৰো বিকল্প আছে। আমাৰ দৰে কৃষকৰ অইল পাম মিছনৰ পৰা বহুত আশা আছে। আমাৰ লাগিছে এই যোজনা আমাৰ বাবে লাভজনক হ'ব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ উপাৰ্জনো বাঢ়িব। অইল পামৰ কৃষকসকলে সতেজ ফলৰ থোক অৰ্থাৎ FFB উৎপাদন কৰে, যাৰ বৰ্তমান মূল্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যত হোৱা উঠানামাৰ আধাৰত নিৰ্ণয় লোৱা হয়। প্ৰথমবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সতেজ ফলৰ থোকৰ মূল্যৰ বাবে কৃষকসকলক আশ্বাস দিছে। ইয়াক প্ৰকৃত মূল্য বা BP বুলি ক'ব পাৰি, অৰ্থাৎ কৃষকসকলৰ কোনো লোকচান হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। এই ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা কৃষকসকলৰ বজাৰৰ মূল্য উঠানমাৰ পৰা সংৰক্ষণ প্ৰাপ্ত হ'ব। প্ৰকৃত মূল্য BP নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ আৰম্ভণি 1 নৱেম্বৰৰ পৰা হ'ব আৰু অহা বৰ্ষৰ 31 অক্টোবৰলৈকে অব্যাহত থাকিব। ইয়াক অইল পাম বৰ্ষ বুলি কোৱা হ'ব। ইয়াৰ দ্বাৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহ আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত খেতি বৰ ভাল হ'ব আৰু কৃষকসকলে আনন্দৰ হাঁহি মৰাৰ এটা নতুন কাৰণ পাব। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में কৃষকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ লগতে শেহতীয়া প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰয়োজনীয় আনুষংগিক দিশৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে চাবলৈ নাপাহৰিব কৃষি দৰ্শন। প্ৰচাৰিত হয় প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ সন্ধিয়া 5:30 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ।